पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे किसी चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला क्या था कि इफ C इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर एंड चार्ज सप्लाइड टू कंडक्टर इज Q, then electrostatic potential energy of conductor U equal to Q square by 2C. This formula can be expressed in different two forms. Since Q equal to CV, therefore U equal to half CV square और U equal to half Q into V. इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब दो चार्ज कंडक्टर को किसी कंडक्टिंग वायर से आपस में कनेक्ट कर दिया जाए और एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज का ट्रांसफर हो तो उस दौरान कितनी एनर्जी का लॉस होगा। तो आज हम लोग जो एक्सप्रेशन निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज from one conductor to another conductor. So let us consider two conductors of capacitance C1 and C2 having charge Q1 and Q2 and potential V1 and V2। हम दो कंडक्टर लिए, एक का कैपेसिटेंस C1 है, एक का C2 है, एक पर चार्ज Q1 है, एक पर चार्ज Q2 है, एक का पोटेंशियल V1 है और एक का पोटेंशियल V2 है। तो एनर्जी ऑफ बोथ कंडक्टर्स, एनर्जी ऑफ बोथ कंडक्टर्स U1 इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर इज एनर्जी ऑफ वन कंडक्टर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। This is the energy of both conductors when they are not in contact. They are separate to each other. Now, if both conductors are connected to each other by a conducting wire, then charge will be transferred from one conductor to another conductor till the acquiring a stage of equal potential. That means the potential of both conductors will be same. Let both conductors be connected with each other by a conducting wire. After connection, common potential of both conductors be equal to, let both conductors be connected with each other by a conducting wire। दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाता है। आफ्टर कनेक्शन कॉमन पोटेंशियल ऑफ बोथ कंडक्टर, तो कॉमन पोटेंशियल
equal to total charge by total capacitance. The total charge will be Q1 plus Q2 and total capacitance C1 plus C2. In place of Q1 we can write C1 V1 because Q equal to CV. The C1 V1 in place of Q2 we can write C2 V2 divided by C1 plus C2. Now energy of both conductors after connection U2 equal to half total capacitance C1 plus C2 into V square, the half C1 plus C2. In place of V, we can write C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. The C1 V1 plus C2 V2 whole square by C1 plus C2 square. This will be cancelled out from this power. The U2 equal to C1 V1 plus C2 V2 square by 2 C1 plus C2. The U1 is the energy of both conductors when they are separated to each other. U2 is the energy of both conductors when they are connected by conducting wire. Now we have to find the loss of energy during transfer of charge from one conductor to another conductor. For this, the difference of U1 and U2 will give the amount of energy lost during transfer of charge from one conductor to another conductor. The loss of energy during transfer of charge from one conductor to another conductor, delta U equal to U1 माइनस U2. अब U1 और U2 दोनों का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 1/2 C1 V1 square 1/2 C2 V2 square. This is value of E1 minus C1 V1 plus C2 V2 whole square by 2 C1 plus C2. अब इसी को हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ 1/2 C1 प्लस C2. तो इस तीनों में से हम 1/2 C1 प्लस C2 को कॉमन ले लेंगे तो 1/2 C1 प्लस C2. तो यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, लेकिन नीचे C1 प्लस C2 नहीं है. तो इस C1 प्लस C2 से हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C1 प्लस C2. C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस यहाँ से कॉमन हो चुका है C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर 1/2 C1 प्लस C2. अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो C1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C2 C1 V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर. अब इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पर तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2. तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 स्क्वायर माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस
C2 V2 माइनस ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा। C1 इंटू C2 यहाँ भी है, C1 इंटू C2 यहाँ भी है, C1 इंटू C2 यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा। तो C1 C2 भाई 2C1 प्लस C2, यहाँ बच गया V2 यहाँ बच गया V1 माइनस यहाँ क्या बच गया 2V1 V2। तो डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V2 माइनस V1 होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। C1 and C2 are capacitance of both conductors. V1 and V2 are potential of both conductors. From this expression, it is clear that delta U will be always positive, because if V2 is greater than V1, this will be positive. If V2 less than V1, again this term will be positive, or capacitance will be never negative. So delta U will be always positive, which confirms that U1 is greater than U2. यानी ये जो डेल्टा U है इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो कभी निगेटिव होता नहीं है। अगर V2 बड़ा है V1 से तब तो ये पॉजिटिव है ही, अगर V2 छोटा भी है V1 से तो ये स्क्वायर है, इसलिए ये पॉजिटिव ही होगा। और डेल्टा U का पॉजिटिव होना ये कंफर्म कर रहा है कि U1 ग्रेटर देन U2। U1 क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंडक्टर का है जब दोनों एक दूसरे से क्या है अलग है। U2 क्या है? दोनों की एनर्जी जब दोनों आपस में कनेक्ट कर दिए गए। तो पहले की एनर्जी अधिक है, बाद की एनर्जी कम है, मतलब एनर्जी का लॉस हुआ। अब कभी कभी पूछ देता है कि ये जो लॉस्ट एनर्जी है वो कहाँ गई? तो दिस लॉस्ट एनर्जी इज टू बी ट्रांसफॉर्म in the form of heat due to resistance of connecting wire। एक लाइन आप यहां लिख सकते हैं, this lost energy is to be transformed in the form of heat due to resistance of conducting wire। अब हम लोग पढ़ लिए कैपेसिटेंस क्या है किसी कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है। अगर उस स्फेरिकल कंडक्टर को किसी मीडियम में रखते हैं तब उस पर उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कोई भी चार्ज कंडक्टर में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और अगर दो कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर को हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी का लॉस होता है। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर, इसको ध्यान से समझिए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कंडक्टर किसको कहते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी किसी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा तो क्या होगा, तो मान लो एक कंडक्टिंग मटेरियल का ये प्लेट है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये रैंडमली इधर उधर अपना मूव कर रहे हैं, फ्री है। अब इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई चार्ज Q सिचुएटेड है
तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है F इक्वल टू QE। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, direction of force is to be in the direction of electric field, and if charge is negative, then direction of force is to be in opposite direction of electric field. The in conductor free electrons are present and electrons are negative charge particle. When electric field is applied, the force QE start to act on each electron in opposite direction to the direction of electric field, and due to this force, free electrons are start to accumulate on opposite surface of conductor. ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर इधर फोर्स लगना शुरू हो गया। कौन सा फोर्स? F इक्वल टू Q। और इस फोर्स के कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट वाले सरफेस पर एक्यूमुलेट होंगे, इकट्ठा होने लगेंगे, और जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होंगे वहां पर नेगेटिव चार्ज सेटअप हो जाएगा। अब जिस एटम से ही निकले हैं वो सभी पॉजिटिव आयंस हैं, तो पॉजिटिव आयंस पर फोर्स F इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगना शुरू होगा, तो वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाले सरफेस पर एक्यूमुलेट होंगे। तो इस कंडक्टर के एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे सरफेस पर नेगेटिव चार्ज सेटअप होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि इस कंडक्टिंग प्लेट के इनसाइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसका डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। यह जो आपका फिनोमिनन है तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक कंडक्टर के इनसाइड में डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे आप किसी कंडक्टिंग मटेरियल के प्लेट को रखें और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किए, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, चूंकि इसके इस फेस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसका मैग्नीट्यूड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, तो कंडक्टर के इन साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 0। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उसके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है। इससे एक और रिजल्ट निकला, अगर कंडक्टिंग मटेरियल के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि अगर आप उस किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के बॉडी को चार्ज देते हैं तो प्रश्न उठता है कि वो चार्ज कहाँ पर स्टे करेगा। तो चूंकि इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका अर्थ है गॉस लॉ के हिसाब से उस कंडक्टर के अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस यदि हम लोग कंस्ट्रक्ट करें तो उससे लिंक्ड जो आपका फ्लक्स है वो 0 होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि 0 है। और फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या है कि कंडक्टर के इन साइड में कोई चार्ज नहीं है। तब तो टोटल चार्ज सप्लाई टू ए कंडक्टर स्टे ऑन इट्स सरफेस, चार्ज इज नॉट सिचुएटेड इनसाइड कंडक्टर। तो यहां पर एक पॉइंट हो गया कि when plate of conducting material is situated in electric field, then inside plate electric field is to be 0। जब भी किसी कंडक्टिंग मटेरियल के प्लेट को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। दूसरा बात याद रखना है, सेकंड, चार्ज सप्लाइड
to a conductor always stay on its surface। और थर्ड, सरफेस पर जो भी चार्ज सिचुएटेड है तो उस चार्ज क्या है, रेस्ट में है। तो चार्ज रेस्ट में कब होगा, जब उस पर जो है फोर्स उस सरफेस के पैरेलल नहीं लगेगा। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उसके सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन चार्ज कंडक्टर इज directed normally to the surface of conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, जीरो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि व्हेन प्लेट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इज सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, then inside plate electric field is to be zero। Second point, charge supplied to a conductor always stay on its surface। और third point, electric field at any point on charge conductor is directed normally to the surface of conductor। चार्ज कंडक्टर कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल क्यों नहीं होगा, तो आपका जवाब क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के पैरेलल या सरफेस के नॉर्मल से कुछ एंगल पर भी होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पर फोर्स लगेगा और तब चार्ज वहाँ रेस्ट में नहीं होकर सरफेस पर क्या हो जाएगा, मोशन में। जबकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि कंडक्टर पर जो भी चार्ज है वो स्टैटिक पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। तो जब भी किसी कंडक्टर पर चार्ज रेस्ट पोजीशन में है, इसका मतलब है कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस के क्या है, नॉर्मल है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक्स। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो इंसुलेटर हैं जिन्हें डाई इलेक्ट्रिक कहा जाता है। उस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी चर्चा अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।